हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द न्यूरल सिस्टम. ठीक है, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? द CNS एंड द PNS. The CNS includes the brain and the spinal cord, and the PNS includes what? The nerve fibers outside the central nervous system. ठीक है, CNS खुद क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम and the autonomous neural system, and further the autonomous neural system is further divided into two, that is the sympathetic and the parasympathetic. Okay, we've already given this introduction in the starting of this chapter, but later on we'll in the end of this chapter we'll just discuss one or two lines about this peripheral neural system. Okay, now we've already discussed about the structure and the functional unit of these central nervous system, that is the neurons, and we were supposed to discuss today the generation and conduction of the impulses. Okay, the nerve membrane is present, and the nerve membrane is present in what state? The polarized state. And why do we call it as a polarized state? Because it has charges on it. Okay, the outer side of the membrane is positively charged and the inner side of the membrane is negatively charged in normal condition or in resting condition, when the neuron membrane is not conducting any impulse through it. Okay, why? Because the sodium concentration is more outside the membrane and the potassium concentration is inside the membrane, and also some negative proteins are present inside the membrane. In the resting state, the membrane is impermeable to these ions. Okay, and this resting state is also maintained by with the help of the sodium and the potassium pumps. Okay, what does it do? That it like throws out, or it takes out 3 sodium ions in turn of the 2 potassium ions inside the cell or inside the neural membrane. Okay, this helps in this maintaining the resting membrane potential. What is the resting membrane potential? The potential difference across the neural membrane, okay, in the resting state is known as the resting membrane potential. And when the neuron membrane is conducting some impulse, okay, at that time the potential difference across this membrane will be known as the action potential. Okay, now we'll start discussing about the generation and the conduction of the impulses. Okay, when abhi what is the situation? That the sodium ions or the membrane outside the outside area of the membrane is what? Positively charged, and the inside is what? Negatively charged. But whenever the stimuli will come on this site, or where the I'd say will assume it as a site A. Okay, whenever the stimuli will come, जैसे ही stimuli आई, okay, तो उसमें उस वक्त क्या होगा कि if you remember, I've told you in the previous lecture that there are some ion channels present in it. Okay, in this membrane I've already discussed about the ion channels in the previous chapters of the cell wala unit. Okay, now the ion channels becomes permeable to these sodium ions. Okay, जैसे ही कोई stimuli आई, जैसे ही स्टिमुलाई आया, ओके, वैसे ही क्या हुआ कि आयन चैनल्स, या I'd rather say कि membrane becomes permeable to the सोडियम आयंस. ठीक है, जैसे स्टिमुलाई आ जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगी? जो मेम्ब्रेन है, जो हमारी न्यूरल मेम्ब्रेन है, इट बिकम्स परमिएबल टू दी सोडियम आयंस. ओके, जैसे ही सोडियम आयंस क्या हो जाएंगे? जैसे ही परमिएबल होगी तो सोडियम आयंस का क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स हो जाएगा. इनफ्लक्स मीन्स इनसाइड मूवमेंट. ठीक है, इनसाइड मूवमेंट हो जाएगा. तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस विल अकर. ओके, इस साइड पे क्या हो जाएगा? सोडियम आयन का
इन्फ्लक्स हो जाएगा, सोडियम आयंस क्या हो जाएंगे, अंदर आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इस सोडियम आयन के अंदर आते ही क्या है कि सोडियम आयन की वजह से ही बाहर क्या थी, पॉजिटिविटी मेंटेन थी, पोलैरिटी मेंटेन थी। जैसे ही सोडियम आयंस क्या हो गए, अंदर आ गए, वैसे ही क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल या मेम्ब्रेन के चार्जेस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन के चार्जेस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। मतलब कि जो अब आउटर मेम्ब्रेन का चार्ज है, ठीक है, अगर अपन एक मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, आउटर इनर मेम्ब्रेन नहीं है, सॉरी, आउटर साइड है और इनर साइड है। ठीक है, अगर अब अपन देख रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका जो आउटर साइड है, दैट इज व्हाट, आफ्टर द जनरेशन ऑफ द इम्पल्स, ओके, द चार्ज ऑफ द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विल बिकम नेगेटिव। पहले इट वाज पॉजिटिव व्हेन इट वाज इन द रेस्टिंग स्टेज, बट नाउ व्हेन द इम्पल्स हैज बीन जनरेटेड, ओके, the reversal of the charges will occur and the outer side will become more negative. Can you see these negative signs or at this side where I have drawn this arrow, okay, and the inside is positive. Jabki in the resting state, what we know, it was more positive outside and it was negative inside the membrane, okay. अभी भी आप देख सकते हो कि ये जो साइट है, यहाँ पे ही क्या हुआ, अभी तक कंडक्शन का काम चालू है, इनिशिएट यहीं से हुआ है, एक एक करके चालू होता है, आगे फर्दर ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे अभी इम्पल्स आया है वहाँ पे क्या है, नेगेटिव आया है बाहर का चार्ज और अंदर पॉजिटिव आया है, जबकि बाकी का जो पूरा अभी भी मेम्ब्रेन है वो क्या है, अपनी रेस्टिंग स्टेज में ही चल रही है। मतलब कि बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव आयंस है। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन आया, तो वैसे ही क्या हो गए, रिवर्सल ऑफ चार्जेस ऑन दी मेम्ब्रेन, रिवर्सल ऑफ चार्जेस ऑन दी मेम्ब्रेन। ठीक है, रिवर्सल होके क्या हुआ, इनर साइड जो है वो पॉजिटिव बन गई और आउटर साइड जो है वो नेगेटिव बन गई। ठीक है, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, अपन इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, पहले जब क्या था कि चार्जेस अंदर नेगेटिव थे और बाहर पॉजिटिव थे, तब अपन ने मेम्ब्रेन को क्या कहा था, पोलराइज स्टेट में कहा था। ठीक है, जैसे रिवर्सल चार्जेस हो गए तो अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अपन इसको क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट। रिवर्सल ऑफ चार्जेस को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, डीपोलराइज जैसे ही मेम्ब्रेन हो जाती है तो क्या होता है कि इन चार्जेस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। इन इम्पल्सेस को जनरेट और ट्रांसमिट करने के लिए क्या होता है, एक करंट सा फ्लो करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट सा फ्लो करता है, जिसके थ्रू क्या होती है, हमारी जो नर्व ट्रांसमिशन जो नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन है वो क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक होता है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या चीज़ देखी थी, अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो हम इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है, या अभी इसी का बात करते हैं, इतनी तो क्या है, एक फाइन लाइन बना देती हूँ। ठीक है, इतनी जो मेम्ब्रेन है उस पे क्या है, इम्पल्स आ गई है और वो क्या हो गई है, डीपोलराइज हो गई है। ओके, बाकी की जो नर्व मेम्ब्रेन है वो एज इट इज क्या पड़ी है, जैसे पहले थी, मतलब पॉजिटिव बाहर और नेगेटिव अंदर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर साइट है जो कि क्या है, डीपोलराइज्ड है। ठीक है, ये कौन सी साइट है, डीपोलराइज स्टेट में है, और ये वाला कौन सी जगह है, पोलराइज स्टेट में है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर अपन मेम्ब्रेन के अंदर की बात करेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन के अगर अपन अंदर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करेगा,
पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। और अगर अपन आउटसाइड द मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो करंट ऑपोजिट साइड में फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और आउटसाइड द मेम्ब्रेन में क्या है, इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, तो करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे करंट क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। और ये मिलके क्या बनाते हैं, एक करंट का सर्किट बनाते हैं। आउटसाइड एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन मिला के ये क्या करते हैं, एक करंट का सर्किट सा बनाते हैं, ठीक है, जिसमें इनसाइड द मेम्ब्रेन जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन है वो कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट और कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे क्या होता है, जैसे सपोज अभी तो क्या था, इतना ही पार्ट डीपोलराइज था, जैसे ही ये डीपोलराइज्ड इलेक्ट्रिक करंट अब यहाँ से फ्लो करना चालू करेगा, वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, आगे वाली भी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड होती जाएगी। और ऐसे क्या होगा, फर्दर ऑन करते करते क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होती रहेगी, जनरेट और कंडक्ट होती जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज हाउ there's generation and the this transmission of the electric impulses, ठीक है। तो इसमें क्या है, डीपोलराइजेशन हुआ, जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ, रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो गए, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होके क्या करता है, जो हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं, जो सिग्नल्स है, वो कैसे होता है, ट्रांसमिट आगे फर्दर ऑन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो करना चालू करता है आउटर मेम्ब्रेन पे, इट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन पे ये क्या करता है, ऑपोजिट साइड में फ्लो करता है, ठीक है, ऑपोजिट साइड में फ्लो करता है। और इस वजह से क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट सा बना देता है, ओके। और जैसे जैसे क्या होगा, ये नर्व इम्पल्स आगे आगे ट्रांसमिट होता जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आता जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इसकी आगे की पोलैरिटी भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। और फर्दर ऐसे क्या चलता जाएगा, पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। और ये जो नर्व इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन आगे पास ऑन हो जाएगा, ओके। तो दिस इज हाउ द नर्व इम्पल्सेस आर कंडक्टेड, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, ये जो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, ये क्या होता है, काफ़ी थोड़े टाइम के लिए होता है। ये जो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, इट इज़ फॉर अ वेरी लिटिल और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे इम्पल्सेस जनरेट होके ख़त्म होती जाती है, वैसे ही क्या होता है, इनका जो आयन चैनल्स है ना, ये सोडियम इन्फ्लक्स, ये जो परमिएबल होती है, वैसे ही क्या होती है, परमिएबिलिटी इनकी ख़त्म भी हो जाती है उतनी ही जल्दी, ठीक है। तो जैसे इनकी परमिएबिलिटी ख़त्म होती है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि पोटेशियम आयंस वगैरह के लिए क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन मैं कहूँ कि परमिएबल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, पोटेशियम आयंस के लिए क्या हो जाती है, ये परमिएबल हो जाती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स होती है। इसकी वजह से क्या होता है, आयंस वापस क्या होता है, अपनी जगह डिफ्यूज़ होते जाते हैं इस मेम्ब्रेन में, और वापस से क्या होता है, जो नर्व मेम्ब्रेन होती है वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आ जाती है, ताकि क्या हो सके, नया इम्पल्स जनरेट हो सके, ठीक है। ये तो थी हमारी एक मैं कहूँ न्यूरॉन मेम्ब्रेन की बात, या एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है, या इफ़ यू गाइज वांट टू नोट इट डाउन यू कैन, बिकॉज इट I have written all this in very simple form that you can draw a flow chart of this, okay. The next topic that we are going to discuss is the transmission of the impulses, okay, transmission of the impulses. I hope you understood it very well, okay, and I have tried to keep it very simple and very basic.
ठीक है, ये तो था जनरेशन एंड कंडक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसमिशन ऑफ दीज इम्पल्सेस. ओके, तो इस ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? अभी हमने जो देखा था वो जनरेशन और कंडक्शन था, मतलब कि ये जो सारा काम हुआ था वो क्या हुआ था, एक सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे थे, एक सिंगल न्यूरॉन मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सिर्फ एक न्यूरॉन तक तो नहीं रखना है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके क्या करते हैं, इस पूरे इम्पल्स को चलाते हैं, इस पूरे ट्रांसमिशन प्रोसेस को चलाते हैं. ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, हमको नहीं मतलब बॉडी क्या करती है कि न्यूरॉन से न्यूरॉन में क्या करती है, ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती है. ठीक है, न्यूरॉन से न्यूरॉन में भी क्या होती है, ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं. ठीक है, वो जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन का जंक्शन है, ठीक है, वो जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन का जंक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनैप्स. उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनैप्स. और सिनैप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन. सिनैप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, जहाँ से क्या होंगे, हमारे सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होंगे. ठीक है, इस ट्रांसमिशन में क्या मैं कह सकती हूँ कि दो न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, दो न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सपोज ये क्या है, एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, और ये क्या बना रहे हैं, एक जंक्शन बना रहे हैं. ठीक है, जंक्शन मतलब किसी दो चीज़ों का जॉइंट होना है ना, तो वो जंक्शन, ठीक है, जो दो न्यूरॉन्स को ज्वाइन कर रहा है या दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सिनैप्स बोल रहे हैं. ठीक है, अब ये अगर अपन सिनैप्स मांग रहे हैं तो जो पहला वाला न्यूरॉन है लाइन में उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, जैसे सपोज ये दो न्यूरॉन है, ओके, अगर ये दो न्यूरॉन हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये पहला वाला न्यूरॉन क्या हो जाएगा, प्री सिनैप्टिक हो जाएगा, और ये दूसरा वाला जो न्यूरॉन हो जाएगा दैट विल बी पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, तो क्या होता है, ये जंक्शन किससे बना होता है, दो न्यूरॉन से बना होता है, एक प्री सिनैप्टिक और एक पोस्ट सिनैप्टिक. ठीक है, सॉरी, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि कभी कभी मतलब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कभी कभी एक गैप प्रेजेंट होता है जिससे ये दोनों न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है कि एक गैप प्रेजेंट होता है जिनसे ये क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, और उस गैप को अपन क्या बोलते हैं, सिनैप्टिक क्लेफ्ट. क्या बोलते हैं, सिनैप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है. अब ये जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है ये क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, केमिकल. ये जो सिनैप्सिस है, ये जो ट्रांसमिशन है, ये क्या करता है, दो तरह से क्या करता है, इन केमिकल्स को, सॉरी केमिकल्स को नहीं, इन इम्पल्सेस को क्या करता है, आगे से आगे ट्रांसमिट करते हैं. एक इलेक्ट्रिकल तरीके से, ठीक है, जिसको अपन इलेक्ट्रिकल सिनैप्सिस बोलते हैं, और एक क्या होता है, केमिकल तरीके से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल सिनैप्सिस बोलते हैं. ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल सिनैप्सिस है, ओके, दो तरह के सिनैप्सिस बता दिए अपन ने, ये मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, है ना.
अब ये जो सिनैप्स है, ये जो न्यूरॉन्स के बीच का क्या होता है, जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। इनके बीच के गैप को क्या बोला, सिनैप्टिक क्लेफ्ट, और आगे पीछे के न्यूरॉन्स को क्या बोला, प्री एंड पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ओके, अब ये जो सिनैप्सिस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक है इलेक्ट्रिक और एक हो जाएगा केमिकल, ठीक है। पहले हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर। इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि जो प्री और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये जो प्री और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन है ये क्या करते हैं कि आपस में बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मतलब एक दूसरे के बहुत पास प्रेजेंट होते हैं। ये जो गैप था ना सिनैप्टिक क्लेफ्ट, उसमें ये इतना नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं, और जितना खुद से एक मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होंगे, मतलब कि जो इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाएगा, उतना ही आसान और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज मुझे एक जगह से दूसरी जगह जंप मारना है, ठीक है, सपोज आई हैव टू जंप फ्रॉम हियर टू ऑन दिस पोडियम, ओके। तो एक मैं जंप यहाँ से मार रही हूँ और एक मैं जंप यहाँ से मार रही हूँ, तो ज़्यादा इजी क्या रहेगा, ऑब्वियसली जो पास वाला है वो, और उसमें तो जंप होगा ही, क्या ऐसा लगेगा कि चल के एक कदम जा रही हूँ, है ना। तो सेम चीज़ क्या हो जाएगी, हम इलेक्ट्रिकल सिनैप्सिस में मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक, इसमें सिनैप्टिक क्लेफ्ट होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन्स है वो इतने पास पड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब कि गैप ना के बराबर ही है, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इतना पास पड़े होते हैं कि जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है एक से दूसरे न्यूरॉन तक, वो लगता ही नहीं है कि एक से दूसरे न्यूरॉन में हुआ है। ऐसी बात हो जाती है कि सेम न्यूरॉन में ही क्या चल रहा है, ट्रांसमिशन चल रहा है, मतलब दे आर दैट क्लोज, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब अगर इतना सही मामला है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि दो अलग अलग न्यूरॉन है कि सेम न्यूरॉन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो इसमें जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, इस टाइप के सिनैप्सिस में जो ट्रांसमिशन है इम्पल्सेस का वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। इस टाइप के जो सिनैप्सिस में जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। वेयर एज अगर अपन केमिकल की बात करें तो उस टाइप में क्या होता है कि द पोस्ट एंड प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, ओके। इसमें जो पोस्ट और प्री सिनैप्टिक जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, एक डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से, और उनके बीच में क्या होता है, सिनैप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, सिनैप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। जब अपन ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, ठीक है, एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है वो किस में एंड होता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में एंड होता है, ठीक है। वो किस में एंड होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में एंड होता है। और वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स खुद ही बता रहे हैं अपने नाम से कि भाई वो क्या फंक्शन करते हैं, और मैंने भी आपको बताया था कि वो क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूरॉन सिग्नल्स है उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल वाला टाइप है उसमें क्या होता है, जैसे इम्पल्स आता है इधर एक्सॉन टर्मिनल तक क्या पहुंचता है, इम्पल्स पहुंचता है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल इम्पल्स रीचेस। वैसे ही क्या होता है, ये जो सिनैप्टिक नॉब्स होते हैं, ठीक है, उन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कहा था, सिनैप्टिक नॉब्स। ये जो सिनैप्टिक नॉब्स होते हैं वो क्या होता है, ये जो नर्व मेम्ब्रेन है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके क्या आते हैं, क्लोज आना चालू होते हैं, ठीक है। ये क्या आना चालू होते हैं, जो हमारे सिनैप्टिक नॉब्स हैं वो क्या करते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके क्या होते हैं, क्लोज आना चालू करते हैं और धीरे धीरे इसके साथ क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं,
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और अपना जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो भी केमिकल्स वो कंटेन करते हैं वो किस में रिलीज कर देते हैं, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब्स थे पहले, इसने क्या किया कि इसके साथ क्या कर लिया, इन्होंने फ्यूज कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया, इसके साथ आके क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया सिनेप्टिक वेसाइकल्स ने, सॉरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही क्या करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर पास आते हैं, ओके, तो ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और अपने अंदर से क्या निकालते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स निकालते हैं, वो केमिकल्स निकालते हैं जो कि क्या करते हैं, इस नर्व इम्पल्शन के सॉरी इस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये वेसिकल्स जैसे ही क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ निकाल दिया, अपने केमिकल्स इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में निकाल दिए। ठीक है, जैसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या करते हैं, ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, वैसे ही जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, उन पे जाके एक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, आयंस की एंट्री को अलाउ करते हैं। वो जैसे ही वो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, एक्ट करता है इनके ऊपर ऑन दी रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, वो आयंस की रिसेप्टर्स खुल जाते हैं, वो आयंस को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, एंट्री अलाउ करते हैं, कैसे, इस दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर, इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आयंस क्या होते हैं वहाँ पे एंटर करते हैं, जो एसेंशियल आयंस है जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करने के लिए नेसेसरी है, डीपोलराइज वगैरह करने के लिए नेसेसरी है, वो जैसे ही एंटर करते हैं तो ये जो इम्पल्स है वो क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि ये जो दो तरह के मैंने आपको बताए हैं इम्पल्सेस, ये क्या होते हैं, आपस में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अब ये तो था हमारा इम्पल्शन का प्रोसेस। ठीक है, ये तो क्या था, हमारा इम्पल्शन का प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब ये सब तो हमने देख लिया, जनरेशन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। आई होप आपको ये समझ आया है। ठीक है, और उसके बाद जो हम टॉपिक अभी लेंगे, अपन ने सिनेप्सिस तो डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिकल और केमिकल क्या होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल वाला सिनेप्सिस होता है, ठीक है, सिनेप्सिस होता ही क्या है, पहले पोस्ट दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। ओके, ये प्री सिनेप्टिक है जो पहले वाला न्यूरॉन है, और उसके बाद वाला न्यूरॉन क्या हो जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक हो जाएगा। Sometimes a gap is present in between them, that is the synaptic cleft. Okay, इलेक्ट्रिकल जो टाइप ऑफ सिनेप्सिस होता है उसमें क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं होता, जो दो न्यूरॉन्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कि जो इम्पल्सेस है वो फटाफट से क्या होता है, एक से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है। मैं कहूँगी कि चला जाता है और आगे क्या करना चालू कर देता है, कंडक्ट करना चालू कर देता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में तो ऐसा लगता है जैसे सेम न्यूरॉन में ही क्या हो रही है, इम्पल्स कंडक्ट हो रही है, मतलब दे आर दिस क्लोज। ओके, तो अगर ये इतने क्लोज है तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, और फास्ट होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो टाइप का ट्रांसमिशन होता है इट इज़ वेरी फास्ट। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल टाइप, ओके, तो इसके बीच में क्या होता है कि दे आर प्लेस्ड फार फ्रॉम ईच अदर, the postsynaptic and the presynaptic neurons, okay, and in between them the synaptic cleft is also present. Whenever the impulses are transmitted or it comes to this axon terminal, okay, the synaptic vessels are present in them. Okay, at the axon terminal the synaptic vessels are present in them, and in them it contains the neurotransmitter, the chemicals that helps in the transmission of the neuron impulses. Okay, the whenever the impulse reaches that axon terminal, synaptic vesicles start coming towards the membrane or the plasma membrane of this presynaptic neuron. Okay, it fuses with them and releases the neurotransmitter from
them. Okay, the neurotransmitter is then released into the synaptic cleft, and then in turn the neurotransmitter acts on the receptors that are present on the postsynaptic membrane. Okay, whenever the neurotransmitter act on these receptors, it allows the entry of the essential ions that are necessary for generating the action potential across the another neuron or the postsynaptic neuron. Okay, तो वैसे ही क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है उन आयंस की, एंड देन द transmission process is complete. The nerve impulse has been transmitted from one neuron to the another one. Okay, this is the transmission process. The next topic that we are going to discuss is our brain और ठीक है, ये क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है हमारे CNS के अंदर का. ठीक है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है अपन क्या कह सकते हैं, ब्रेन. मतलब ये अपनी बॉडी का क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है. ओके, अच्छा हाँ, आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आई वगैरह भी दे रखा है, लेकिन सीबीएसई का क्या हो चुका है, कोर्स थोड़ा डिडक्ट हो चुका है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आई और ईयर नहीं पढ़ेंगे. ओके, हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा शॉर्ट एक रिव्यू ले लेंगे फटाफट से ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. ये क्या है, फ्यूचर के हिसाब से भी आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब जो ब्रेन है, ब्रेन क्या होता है, पूरा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. ये क्या करता है, सारी के सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, गेन करके प्रोसेसिंग का काम यही करता है. ठीक है, ये हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. मतलब टेम्परेचर हो गया, मतलब थर्मो रेगुलेशन हो गया, ईटिंग, ड्रिंकिंग, सेक्सुअल बिहेवियर्स, इमोशंस. ठीक है, विजन का प्रोसेसिंग, हियरिंग का प्रोसेसिंग, मतलब इतने सारे फंक्शंस हैं, या इनफैक्ट मैं कहूँ कि सारे के सारे फंक्शंस हैं मोस्टली जो क्या करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है. ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे अपने हाथ पाँव के जो मूवमेंट्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है. ओके, उसके बाद में हमारा जो बॉडी का बैलेंस है वो बना के रख रहा है. ठीक है, और भी बाकी सारे जो मैंने आपको बताए हैं फंक्शंस, वो भी क्या करता है, हमारा ब्रेन करता है. ठीक है, ये हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, गेन करके पूरा प्रोसेस करता है. ओके, ये जो ब्रेन है हमारा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फोर ब्रेन, the midbrain and the hindbrain. ठीक है, ब्रेन जो होता है हमारा, उसको अपन किस में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में. दैट इज द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन. ओके, जो हमारा ब्रेन है उसको क्या कर दिया हमने, नहीं वो क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ठीक है, ये तीनों पार्ट्स, या मैं कहूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या होता है, हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये हमारा स्कल है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है. ठीक है, और उसके बाहर भी क्या होती है, ब्रेन के बाहर क्या होती है, लेयर होती है कॉल्ड दी क्रेनियल मेनिंजेस. ठीक है, ये क्या होती है, लेयर होती है कॉल्ड दी क्रेनियल मेनिंजेस. ठीक है, ये हमारे ब्रेन को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है. ठीक है, ये जो क्रेनियल मेनिंजेस होती है, इसकी खुद की क्या होती है, 3 लेयर होती है. ठीक है, पूरा नहीं लिखते हैं. ये जो क्रेनियल मेनिंजेस है, ठीक है, उसकी फर्दर क्या होती है, 3 लेयर होती है. The outer one is the dura mater. ठीक है, the second one is the arachnoid. The third one and the inner one is the pia mater. ठीक है, क्या होता है, क्रेनियल मेनिंजेस होती है जो कि हमारे ब्रेन को क्या करती है, कवर करके रखती है. ठीक है, आउटर में क्या हो जाता है, इसकी लेयर को क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर कहते हैं. जो मिडल लेयर होती है उसको एरेक्नॉइड कहते हैं, और जो थर्ड लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, पिया मैटर कहते हैं. ठीक है,
अब हम आ जाते हैं फोर ब्रेन के ऊपर, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, द सेरिब्रम, द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस, ठीक है। दिस इज द सेरिब्रम, ओके, this part is the thalamus and this part is the hypothalamus, okay. Now in this cerebrum, thalamus and hypothalamus, ठीक है। जो सेरिब्रम है वो क्या होता है, हमारे फोर ब्रेन का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कंसिस्ट करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो सेरिब्रम एरिया है कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये जो सेरिब्रम एरिया वो कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है ना वो लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है कि एक ग्रूव से क्या होता है सेपरेटेड होता है, या इसको सेरिब्रम को क्या करता है 2 पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होके सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बन जाता है, ठीक है। ये जो सेरिब्रम है इसको जब 2 पार्ट्स में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ने डिवाइड किया तो ये क्या बन जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर बन जाते हैं, ठीक है। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ओके। सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ओके, राइट एंड लेफ्ट, ओके। ये जो हेमिस्फेयर्स हैं, जो ये राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है, वो एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। ये कुछ फाइबर्स से क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, और उन फाइबर्स को अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। द ट्रैक्ट कनेक्टिंग टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये जो हेमिस्फेयर्स है वो क्या होते हैं कि एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जो इसको अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स से ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, और उन सेल्स को या उस लेयर को अपन क्या बोल देते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये सेरिब्रम जो होता है वो क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है ना, हेमिस्फेयर्स कवर्ड with layer of cells known as cerebral cortex, ठीक है, cerebral cortex। ये जो सेल्स होती है, ये मैं कहूँ ये जो लेयर्स होती है वो काफ़ी फोल्डेड होती है, ठीक है। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर होती है इट इज़ प्रिटी मच फोल्डेड, ओके। एंड ऑल्सो ये जो लेयर होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनकी सेल बॉडी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है, काफ़ी क्लोजली, काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो इसको क्या देती है, ग्रे कलर देती है, ठीक है, वो इसको क्या देती है, ग्रे कलर देती है, और इसलिए अपन इसको ग्रे मैटर भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर भी कहते हैं, क्योंकि इस जगह पे क्या होती है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो काफ़ी अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर भी कहते हैं, ओके।
ये क्या होता है कि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, अभी अपन एक बार सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, देन विल डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट क्लास, है ना। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है वो एक बार, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, ओके, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेंसरी एंड मोटर रीजन्स ऑफ आवर बॉडी, है ना। बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस, और सेंसरी मतलब यहाँ से यहाँ तक का रास्ता, और मोटर मतलब वापस यहाँ से यहाँ तक का। तो ये क्या होता है, बहुत सारे सेंसरी और मोटर फंक्शंस का क्या होता है, ये एरिया होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे एरियाज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ना सेंसरी मतलब कंसिडर किए जा सकते हैं और ना ही मोटर कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन एरियाज को अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड एरियाज, ठीक है। वो एरियाज जिनका पता ही नहीं है कि सेंसरी है या मोटर है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड एरियाज बोलते हैं, और वो भी क्या होते हैं, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो सेरेब्रल ये जो एसोसिएटेड एरियाज होते हैं वो मेनली क्या होता है, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन, मेमोरी, इन सब के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक। अभी अपन ने क्या किया है, ब्रेन को बस चालू किया है, जो मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन है, और जो पीएनएस का जो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है वो आई गिव इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हम ब्रेन को भी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ओके, and we'll complete this chapter in the next class itself. Okay, that's it for the today's class. I hope you guys understood everything. Thank you.